Dear students, today we are discussing about compass surveying. So in compass surveying, today we are going to discuss about the introduction of compass surveying. Then we will see what is meridian, then what is bearing, systems of bearing, FB and BB, dip and declination, isogonic and agonic lines, then local attraction. Then we will see what is local attraction, why it occurs, how can we detect, and how we can eliminate it. Then we will see what is traversing. So under traversing, we will see what is the meaning of traversing or definition, and what are the different types of traverse, and how you can perform this in the field, that is field procedure. And we should know after field, we should know how we can plot it, and if there is any errors, then how that will be adjusted perfectly. So these things we will discuss, and after that we can also check whether the traverse is correct or not, that is checking. All these aspects we will discuss in traversing. Then we have to discuss about the instrument that are to be used in compass surveying. Normally we prefer two types of compasses, one is prismatic and another is surveyor compass. And finally, we have already done the traversing with the help of chain surveying, so we try to compare the traversing by compass and traversing by chain survey. So that is comparative review of chain and compass traversing. After that, if there are any other aspects are missing, that we will discuss, and numericals also we will solve later. So chain surveying, everyone knows what is the basic principle of chain surveying. The basic principle of chain surveying is triangulation. Triangulation means network of interconnecting triangles use करते हुए हम लोग काम किए हैं. So what is the basic principle of compass? The basic principle of compass is nothing but traversing. The basic principle of compass is nothing but traversing. So before starting different technical terms that we will discuss in compass, आपको traverse क्या है वो उनके बारे में थोड़ा आइडिया होना जरूरी है. So what is a traverse? Traverse क्या होता है? A framework of network of interconnecting lines is known as traverse. फ्रेमवर्क मीन्स दो तीन लाइन्स होंगे, एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है, एंड दिस इज नोन एज ए ट्रैवर्स. लेट अस से इफ इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी, it is E, then it is A. So this traverse, what is the name of this traverse? A, B, C, D, E, A. That means you are starting with A and ending with A. That is called a closed traverse. Similarly, if you have some other work like this, let us say this is P, Q, R, S, T, U, V. The name of this traverse is P, Q, R, S, T, U, V. So that means here the starting point and ending point are different. So that is, it is a closed, नहीं a open traverse. In reality, as far as surveying is considered, we always do the work either based on closed traversing or open traversing. जब आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई भी तालाब का डिटेल्स लेनी है, कोई शहर का डिटेल्स लेनी है, of any closed object, industrial building हो, hospital building, so they are all comes under closed traverse. पूरी बिल्डिंग को, पूरी एरिया को आप घेरेंगे, एंड द ट्रैवर्स यू विल डू, एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स दैट आर एग्जिस्टिंग इनसाइड द ट्रैवर्स. देन ओपन ट्रैवर्स, जहाँ आपको रोड्स बनानी हो, जहाँ आपको कैनाल्स बनानी हो, जहाँ आपको मेट्रो लाइन बनानी हो, कई रेलवे ट्रैक बनानी हो, कई ऑयल एक्सप्लोरेशन व्हील्स जो है, कोस्टल लाइन्स बनानी हो, ये दीज आर ऑल ओपन ट्रैवर्स है. एक स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट अलग अलग है. इन सच केसेस यू गो फॉर ओपन ट्रैवर्स. So you can do this traversing with the help of any instrument. Chain use करके आप करते थे, but compass में क्या है? This was the first instrument that was introduced to compute the angular measurements. एक traverse अच्छी तरह से आपको करनी है तो you should know the angles also. So simple linear measurement से आपका काम ठीक से नहीं बनते हैं. So that's why जब compass जब concept आया है तो compass covers the more area and you can do the work perfectly. इसीलिए compass का जो basic principle है, the basic principle of compass surveying is traversing. So what is a traverse? Network of interconnecting lines. That is framework of network of interconnecting lines is known as a traverse. Then traversing अलग है. Traversing जहाँ पे हम इंग लगाते हैं, सर्वे नहीं है, सर्वेइंग प्रैक्टिकल बेस्ड है. ट्रैवर्स को जानना, that is called traversing. So that means to measure the length
to measure the length and angles. To measure the lengths and angles, or technically they are also known as bearings, that we will see now. Lengths and angles of different lines of the traverse is nothing but traversing. So traverse definition आपको पता है, जब आपने लेंथ निकाला और एंगल निकाला, जब आप उनको प्लाट करने की स्थिति में होते हैं, then that is called traversing. That means you know the length and angle. Now the thing is how we start the compass surveying. So the first one, सबसे most important है compass surveying में कि because it is based on angular measurement है, तो angular measurement की concept आपको समझने के लिए you should know the meaning of three technical terms. You should know the meaning of three technical terms, and the one is meridian, and the second one is bearing, and the third one everyone knows, that is angle. So once you know the meridian and bearing, you are in a position to compute the angle. You are in a position to compute the angle. So first you should know the basic concept and basic physical meaning of these three technical terms. So what is a meridian? What is a meridian? कोई बता पाएंगे मेरिडियन क्या होता है? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो अब एसएसटी में पढ़ते हैं मेरिडियन क्या होता है. नॉर्थ पोल साउथ पोल को आपने ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दिया तो वो मेरिडियन है. वो लाइन लेंथ कितना भी हो सकता है. तो टेक्निकली स्पीकिंग मेरिडियन क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज मेरिडियन. लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज मेरिडियन. अब मेरे पास यहाँ एक पॉइंट P है और मेरे पास यहाँ एक पॉइंट Q है. मैं P और Q को ज्वाइन करता हूँ, इमेजिन करता हूँ, ये क्या है? ये मेरिडियन है. अभी मेरे लिए इफ़ इट इज़ A, इफ़ इट इज़ B, इफ़ आई ज्वाइन A एंड B, ये लाइन क्या है? ये मेरिडियन है. अब इस रूम में यहाँ कॉर्नर में एक पॉइंट X है, यहाँ कॉर्नर में एक पॉइंट Y है. इफ़ यू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वन, दिस लाइन? दिस इज़ नथिंग बट मेरिडियन. तो मेरिडियन सिंपल परिभाषा में हम लोग ये कहेंगे एन इमेजिनरी लाइन, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं ए से बी में जोड़ रहा हूँ. तो एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स मे बी नोन एज मेरिडियन. एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स मे बी नोन एज मेरिडियन. ये दोनों पॉइंट कहाँ पर है? वेयर आर दीज टू पॉइंट्स? दे आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. बोथ द पॉइंट्स आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. दैट मीन्स इफ इट इज़ मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, ए बी को मैं ज्वाइन करता हूँ, मेरे लिए मेरिडियन है. तो ये वर्टिकल सरफेस है, बट व्हेन आई ड्रा ए लाइन, ये आपको ये एज्यूम करनी है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. दैट मीन्स इफ आई हैव टू पॉइंट्स, लेट अस से दिस इज ए पॉइंट, let us say this is a point A and this is a point B. Let us say this is a point A and this is a point B. That means जमीन में आपने दो पॉइंट लिए हैं. And if I join these two points through a line with the help of a line, and that line is known as meridian. So what is this? This is simply meridian. This is simply, you can call it as a meridian. You can call it as a meridian. That means an imaginary line joining any two points may be known as meridian. An imaginary line joining any two points may be known as meridian. Thank you. So now we are discussing about meridian. So I am just repeating, an imaginary line joining any two points may be known as meridian. Now, in the first slide we mentioned there are, एग्जाम में ये पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मेरिडियन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिडियन. 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए पूछते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय ए मेरिडियन आपको समझ में आ गया. अब 2 पॉइंट जो है, दिस इज ए और दिस इज बी, इन्हें आप आर्बिट्रीली सेलेक्ट किया. किसी ने आपको ये नहीं कहा कि भाई ये यहाँ पर है, बी यहाँ पर है. तो एक एरिया में आपने लाइंस का एंगल्स वगैरह निकालने हैं, तो आपको पहले मेरिडियन क्रिएट करना पड़ता है. तो वो मेरिडियन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं. आपने आर्बिट्रीली ले लिया 2 पॉइंट, उनकी रेफरेंस से आप ये काम करना चाहते हैं. सो आपने यही एक पॉइंट लिया, ये है, बट दिस इज एन आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट, और ये आर्बिट्री पॉइंट 1 है, उसका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं. दूसरा आपका हो गया आर्बिट्री पॉइंट 2. तो इफ़ आई ज्वाइन आर्बिट्री पॉइंट 1 एंड आर्बिट्री पॉइंट 2, इसका नाम भी आप चाहे तो ये दे सकते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी. सो दिस इज ऑल्सो ए मेरिडियन, बट दिस इज नोन एज आर्बिट्री मेरिडियन. दिस इज नोन एज आर्बिट्री मेरिडियन. दिस इज नोन एज आर्बिट्री मेरिडियन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्री पॉइंट?
जब क्लास चल रहा है आपका, इफ़ आई आस्क ए क्वेश्चन टू ए स्टूडेंट, क्लास में 70 बच्चे हैं, एक को ऐसे पूछ लिया और दूसरा को ऐसे कुछ सवाल पूछ लिया, आई हैव चूजन दीज 2 पर्सन्स रैंडमली, दैट इज़ आर्बिट्रीली मैंने इनको लिया, मेरा कोई टारगेट नहीं था कि इन्हीं से सवाल पूछे और इन्हीं से पूछ ले। सो दीज 2 आर आपके क्या हैं, आर्बिट्री पॉइंट्स हैं। सिमिलरली जब आप फील्ड पे गए हैं, काम करने हैं, तो काम शुरुआत करने से पहले आपने ये माना कि यार मेरे लिए एक पॉइंट मैं ये लेता हूँ और दूसरा मैं ये लेता हूँ, आर्बिट्री पॉइंट बन गया। देन आर्बिट्री पॉइंट ये और आर्बिट्री पॉइंट पे दोनों को ज्वाइन कर लो, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, सो दैट इज नोन एज आर्बिट्री मेरिडियन, दैट इज नोन एज आर्बिट्री मेरिडियन। अब सवाल ये उठती है, आपने काम करके चले गया, 2-3 साल के बाद कोई बंदा आया तो उनको ये पता भी नहीं भाई आर्बिट्री पॉइंट दोनों आपने कहाँ से लिया। दे रियलाइज दैट आर्बिट्री मेरिडियन तो बेटर ये होगा कोई ऐसी 2 पॉइंट रहे वो नोन भी रहे। सो देन तो मेरिडियन क्या होता है, 2 पॉइंट को जोड़नी है। अब उस समय ये कहा गया कि भाई आप कई जिस जगह पे आपने काम कर रहे हैं उनकी मैग्नेटिक नॉर्थ पॉइंट आपको पता हो और मैग्नेटिक साउथ पॉइंट आपको पता हो और दोनों को ज्वाइन करे, तब भी मेरिडियन ही बनेगा। क्योंकि मेरिडियन क्या होता है, 2 पॉइंट को जोड़ दो, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पॉइंट एंड मैग्नेटिक साउथ पॉइंट, इफ यू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स देन दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, देन दैट इज नोन एज magnetic meridian. So that means this is known as magnetic meridian, this is known as magnetic meridian. Most commonly used meridian ये है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, एक स्टील बार लिया कोई भी है, इसको मैग्नेटाइज किया तो मैग्नेटिक बार बन गया। अब इस मैग्नेटिक बार को आपने फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो मैं ऐसा इनको रख के सस्पेंड करता हूँ, इसको हैंग करता हूँ, तो वो ऐसी नहीं रहेगी आप जैसे ही है, क्योंकि वो आप माउल्ड हो चुका है, तो इट इज़ टफ टू माउल्ड यू। तो आपको ये सोच है कि मैं इस तरह से काम करूंगा, तो सेम थिंग ये मैग्नेटिक बार भी यही करेगी। ये क्या कर, मैं ऐसे रखने के बाद भी ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इट ऑलवेज शोज नॉर्थ एंड साउथ, दैट मीन्स इट ऑलवेज शोज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। दैट मीन्स आपको सिंपल मैग्नेटिक बार हो या मैग्नेटिक नीडल हो, उससे आप उस एरिया का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में कुछ भी हो तो ये नॉर्थ हो गया, तो इस डायरेक्शन में कुछ भी होगा तो ये साउथ हो गया। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैग्नेटिक नीडल यू आर इन ए पोजीशन टू लोकेट मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ दिस एरिया। तो इसी कमरे में आपने मैग्नेटिक नीडल को हैंग किया, इस यहाँ पे आपने एक रेंजिंग रॉड लगा दिया, यहाँ एक रेंजिंग रॉड लगा दिया, तो इमेजिन कर दिया ये लाइन कौन सी है, ये भाई ये तो हो गया आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। बट इन रियलिटी द एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ नॉर्मली सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का होता है, तो दे ऑल ओवर इंडिया का किसी भी एरिया का आपको जियोग्राफिकल पोजीशनिंग वगैरह चाहिए तो दे कैन गिव द एक्चुअल नॉर्थ, दैट इज नोन एज टेक्निकली दैट इज नोन एज ट्रू नॉर्थ, टेक्निकली दैट इज नोन एज ट्रू नॉर्थ। दैट मीन्स इस कमरे का या दिस इंस्टीट्यूट की ट्रू नॉर्थ आपको पता है। इफ यू नो द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ ऑफ दिस रूम, सो दैट मीन्स इफ यू नो द ट्रू नॉर्थ पॉइंट एंड इफ यू नो द ट्रू साउथ पॉइंट, then that meridian is known as true meridian, true meridian। इतना सिंपल है, एग्जाम में पूछ लेते हैं 4 मार्क के लिए, व्हाट इज मेरिडियन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिडियन। सो जस्ट आई एम रिपीटिंग, मेरिडियन क्या होता है, एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इज सिंपली नोन एज मेरिडियन। नेक्स्ट, एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग 2 आर्बिट्ररी पॉइंट्स इज नोन एज आर्बिट्ररी मेरिडियन। एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग magnetic north and magnetic south points is known as magnetic meridian. An imaginary line joining true north and true south points is known as true meridian. So that is the concept of meridian. Once you know the meridian, the next step is bearing. ये most important thing है, you should know what is the physical meaning of bearing. What is the physical meaning of bearing? See, I will ask you a simple question. सोच लीजिए, आपसे ये पूछा गया कि 30 डिग्री की लाइन बना दीजिए। जस्ट आई हैव गिवन ए सिंपल क्वेश्चन, दैट इज 30 डिग्रीज की लाइन बना दीजिए। आंसर में भी डिफरेंट। अब क्यों नहीं, 30 डिग्री की लाइन आपको बना रहा है। इफ इट इज योर A4 साइज पेपर, इफ इट इज योर A4 साइज पेपर, 30 डिग्री लाइन बना दीजिए, तो मैथमेटिशियन का सोच अलग है, सिविल इंजीनियर की सोच अलग है। बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर जगह पे। तो ये आप 30 डिग्रीज जो कह रहे हैं, तो मैथमेटिकल एंगल में आप लिखेंगे। आप किसी ने ये बनाया, सर ये 30 डिग्री लाइन है, दूसरा ने नहीं सर ये नहीं है, ये 30 डिग्री है मेरा। ये कोई कहेगा नहीं सर ये ऐसा है मेरा 30 डिग्री, कोई ये कह देगा नहीं सर मेरा ऐसे ही है। सो सब आंसर सही हैं, बट द प्रॉब्लम इज सही है, सही भी नहीं है। बिकॉज
I am asking you draw a line of 30 degree. Here you are putting two lines. Single line से angle नहीं show कर सकते हैं. When I say 30 degree, if it is angle, that is angle between two intersecting lines. ये लाइन्स कहाँ पर हैं, दैट वी विल सी. लोकेशन के स्पीड स्केच बनाते हैं, देन अकॉर्डिंगली वी विल डू द काम. देन वी विल रिस्ट्रिक्ट कि भाई आपको यही बनाने हैं बताएंगे, देन वी विल ड्रा हियर ओनली. बट हियर आल्सो द प्रॉब्लम इज आई एम आस्किंग यू टू ड्रा ए 30 degree line. It is not possible to draw a 30 degree line without having any reference line. Without having any reference line. All answers are correct. If it is his line, so then it is his reference line. If it is his line, then it is his reference line. If it is his line, so then it is reference line. So that means एक line आपको चाहिए and that line is known as reference line. वो mathematics में आपको कहे ना कहे, but the meaning is the way there you are drawing intersecting line between intersecting angle. That means दो line intersect होता है तो angle बन रहा है. But single line के लिए भी angle होगा, single line के लिए भी angle होगा. Because in which direction that line is moving. That means single line के लिए भी जो angle होती है तो ये 30 degree है, but ये इनकी एंगल है विथ रेफरेंस टू दिस, या इनकी एंगल है विथ रेफरेंस टू दिस. व्हाट इज दैट रेफरेंस लाइन? इन सर्वेइंग दैट रेफरेंस लाइन इज नथिंग बट योर मेरिडियन. In surveying, that reference line is nothing but your meridian. That means when we say draw an angle 30 degree line, in surveying we never use the word angle for a single line. You never use the angle for a single line. For single line, you use a word that is known as bearing. That is known as bearing. So survey में क्या होता है? When you are drawing a 30 degree line, तो ये एक line है और दूसरी line है. That means for this you should know what is the bearing of one line and what is the bearing of the other line. If you know the bearing of this line and bearing of this line, then you will calculate the angle. That means in reality जब आपको ये कहा गया कि दो पॉइंट के बीच में एंगल निकाल दीजिए, तो सर्वे में क्या होता है? फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ लाइन 1 and you will calculate the bearing of line 2, then you will calculate the angle. That means directly you are getting the bearings, from the bearings you are getting the angle. In mathematics that is different, and this though, so that is the basic difference. That's why you should know the meridian, that is the reference line. Then from the meridian you will get the bearing, and from the bearing you will get the angle. So now we will see what is a bearing. Now we will see what is a bearing. We will see what is a bearing. So if it is meridian, मेरिडियन है ये, क्योंकि हम लोग यही कह रहे हैं दिस इज ए मेरिडियन, ए और बी मेरिडियन है. अब आपके पास एक लाइन पी क्यू है. व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन? पी क्यू. अब ये लाइन ऐसी है, ये पी और क्यू. ये भी क्या है? ये रेफरेंस लाइन है, ये तो इमेजिनरी लाइन है. पी क्यू तो हैं, इन रियलिटी में पी एक पॉइंट है, क्यू एक पॉइंट है. अब ये जो पी क्यू लाइन जो है, ये रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बना रहे हैं, लेट अस से इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा. दिस थीटा इज नोन एज बेरिंग. दिस थीटा इज नोन एज बेरिंग. यहाँ तो आपको लग रहा है वर्टिकल एंगल जैसा दिख रहा है, ये वर्टिकल एंगल नहीं है. व्हाट इज दिस मीनिंग? आई विल एक्सप्लेन अगेन. आई विल एक्सप्लेन. लेट अस से आपने एक मेरिडियन मान लिया कि ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दिस इज योर मेरिडियन. अब ज़मीन में एक पॉइंट P है, यहाँ पर है, और एक पॉइंट Q है. PQ लाइन मैंने ये बनाया, एंड ये भी मेरा मेरिडियन है. और ये भी लाइन और PQ के बीच में जो एंगल है वो कौन सी एंगल है? दिस इज हॉरिजॉन्टल एंगल, बिकॉज इट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो दैट हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मेरिडियन एंड द गिवन लाइन, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मेरिडियन एंड द गिवन लाइन इज सिंपली नोन एज एंगल. यहाँ एंगल कौन सी है? हॉरिजॉन्टल एंगल. यहाँ तो दिख रहे हैं वर्टिकल लग रहा है, लेकिन ये वर्टिकल नहीं, बिकॉज इट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो मेरिडियन और लाइन के बीच में जो एंगल होते हैं, दैट इज कॉल्ड बेरिंग. द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ए मेरिडियन एंड गिवन लाइन इज नोन एज बेरिंग. सिंपली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वंस अगेन. फील्ड में ये एक पॉइंट P है, ज़मीन में आपने एक पॉइंट P लिए हैं और एक पॉइंट Q है. तो आपने गया फील्ड पे, P रेंजिंग रॉड है, Q रेंजिंग रॉड. आपसे पूछा भाई इस PQ लाइन की एंगल बताए. एंगल तो होगा नहीं, बेरिंग क्या है? सिंगल लाइन का तो बेरिंग. व्हाट इज द बेरिंग ऑफ दिस लाइन PQ? तो स्टार्टिंग पॉइंट जो P हैं, इनकी थ्रू इफ इट इज और पॉइंट P है, तो हम ये इमेजिन कर लेंगे एक मेरिडियन रख लेते हैं.
तो दैट मीन्स P से कोई भी एक लाइन बना दीजिए। ये क्या है आपकी, ये आपकी मेरिडियन बन गए, क्योंकि मेरिडियन क्या, इधर एक पॉइंट था और इस साइड एक पॉइंट था, आपका मेरिडियन बन गया, आपने इमेजिन कर दिया। अब यहाँ से लेके कोई भी लाइन आप बन रहे हैं, आपका लाइन का नाम क्या है, PQ है। सो दिस एंगल जो आप नाप रहे हैं दैट इज कॉल्ड, लेट अस से फाई थीटा, जो भी है थीटा नाम दिया, तो दैट इज योर बेरिंग। दैट मीन फर्स्ट यू नो द लाइन, फर्स्ट यू नो द लाइन, लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से आपने मेरिडियन बनाया और ये आपने एंगल निकाला। ये जो एंगल आप निकाल रहे हैं, हाउ यू आर कंप्यूटिंग, विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंपास, जिसने मैग्नेटिक नीडल को यूज करके काम करते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। दैट वी विल सी लेटर, बट पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दैट मीन्स मेरिडियन तो इमेजिनरली क्रिएट हुआ है, यहाँ तो आपने एज्यूम किया है, तो ये सिंपल मेरिडियन था, इसलिए मेरिडियन और लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल एंगल इज सिंपली नोन एज बेरिंग। सो व्हाट इज बेरिंग, 2 मार्क के लिए कभी आता है या सिंगल मार्क के लिए आएंगे या कभी 4 मार्क के लिए आता है कि व्हाट इज बेरिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग, व्हाट इज मेरिडियन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिडियन। 3 टाइप्स ऑफ मेरिडियन है, सिमिलरली 3 टाइप्स ऑफ बेरिंग्स हैं। सो व्हाट इज ए बेरिंग, it is nothing but horizontal angle between the given meridian and the line is simply known as bearing। अब वो मेरिडियन जो था, ये तो आपने आर्बिट्री, अब ये एक पॉइंट P है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और इनकी थ्रू जो जा रहे हैं इस मेरिडियन में, ये आर्बिट्री पॉइंट है और ये भी आर्बिट्री पॉइंट है। ये मेरिडियन क्या होगा, आर्बिट्री मेरिडियन है। सो इफ यू एज्यूम जो मेरिडियन है मेरा आर्बिट्री मेरिडियन, सो द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द आर्बिट्री मेरिडियन and the given line is simply known as arbitrary bearing। the arbitrary bearing क्या होता है, horizontal angle between arbitrary meridian and the given line is known as arbitrary bearing। अब सवाल ये उठते हैं what is magnetic bearing, what is magnetic bearing। so लाइन तो वही है, PQ है, लाइन P और Q है, बट P पॉइंट पे आपने मैग्नेट रखा था, आपका ये क्या बन गई, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ मिल गया, तो ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन बन गई। सो मैग्नेटिक मेरिडियन और गिवन लाइन के बीच में जो एंगल होता है दैट इज सिंपली नोन एज मैग्नेटिक बेरिंग। सो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द गिवन लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक बेरिंग। देन आपसे ये पूछेंगे आखिरी वाला कौन सी है, ट्रू बेरिंग। वेरी गुड, ट्रू बेरिंग। सो यहाँ इफ इट इज ए ट्रू नॉर्थ, सो दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट P और Q आपको पता है और आपने ये मेरिडियन बना दिया, एंड दिस एंगल विल बी ट्रू बेरिंग। सो व्हाट इज ट्रू बेरिंग, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द गिवन लाइन इज नोन एज ट्रू बेरिंग। 4 मार्क आपको मिल गया, लाइन स्केच बना दिया आपने, दिखा दिया। एक ध्यान देना, जब भी हम मेरिडियन शो कर रहे हैं, अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो शो करने, दैट मीन्स लाइन कैसे इंडिकेट होता है, एरो इंडिकेट कर रहा है इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो एरो शुड बी शोन, विदाउट एरो इट शुड नॉट बी शोन। मेरिडियन में एक थंब रूल है, ये विदाउट, इस पे ये नहीं शो करना है। और ये जो है आपने एरो शो करना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ से ये शो कर रहे हैं, आपने ये एरो नहीं शो कर रहे हैं। इफ़ देयर इज ए लाइन लाइक दिस, आप ये शो करता है तो गलत है, वो एंगल हो जाएगा, तो इसलिए इट इज़ बेरिंग, तो एरो शो कर रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एंगल बना रहे, एंड दैट इज़ योर बेरिंग, दैट इज़ योर बेरिंग। देन यू विल सी व्हाट इज एंगल, एंगल आप कैसे निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P है, आपसे ये कहा गया कि ज़मीन में एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R है। आपसे ये पूछा गया कि इट इज़ ए पॉइंट P, दैट इज़ Q एंड दिस इज R, कंप्यूट द एंगल P। दैट मीन्स सिंपली यू जॉइन P एंड Q, let us say P and Q and P and R, and you have been asked to measure the angle P। So you have simply asked to measure the angle P। फील्ड में आपको क्या करना है, you have to take the instrument और simply assume that P पॉइंट पे आपने जो कंपास यहाँ फिक्स करेंगे, तो नेचुरली आपका मेरिडियन यहाँ फिक्स हो जाएगा। Let us say, so whenever we say मेरिडियन, स्पेसिफिकली कहता है तो वो मेरिडियन है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट एज फार एज सर्वेइंग 1 इज कंसिडर्ड, वी विल कंसिडर इट एज ए मैग्नेटिक मेरिडियन। वेन एवर आई यूज द वर्ड मेरिडियन, वो अंडरस्टूड है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। वेन आई यूज द वर्ड बेरिंग, तो अंडरस्टूड है वो मैग्नेटिक बेरिंग है। जब तक आपको स्पेसिफिकली नहीं बताता है कि आर्बिट्री हैं या ट्रू हैं, सिंपली इफ दे से बेरिंग दैट मीन्स यू एज्यूम दैट इट इज़ मैग्नेटिक बेरिंग। इफ दे यूज द वर्ड मेरिडियन, वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो मैग्नेटिक मेरिडियन आपके बना दिया। अब इंस्ट्रूमेंट से एक रीडिंग लेते हैं,
सो दिस इज नथिंग बट दिस वन. सो ये P से Q की तरफ देखते हो जो रीडिंग आप लेते हैं, लेट अस से θ1. ठीक है. अब आपने P से R की तरफ देख रहे हैं, दूसरा रीडिंग आपने ले लिया, ये क्या होगा आपका θ2. ये हम आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ एरो लगा है, यहाँ एरो लगा है, ये मेरिडियन है, ये लाइन्स हैं P से Q तक, P से R तक. P से Q तक का डायरेक्शन θ1 आपको मिला, ये θ2 मिला. सो व्हाट इज दिस θ1? θ1 is nothing but bearing of line PQ. θ1 is nothing but bearing of line PQ. And what is θ2? θ2 is nothing but bearing of line PR. bearing of line PR. यहाँ से पूरी इतनी आ रहा है. सो अब आप खुद देखेंगे θ2 में से θ1 को घटाएंगे. फ्रॉम θ2 इफ़ यू डिडक्ट θ1, ये जितना है वो भी उतना ही है. अब ये बड़ा लग रहा है तो ये नहीं, अब समझ लीजिए ये लिखा, ये भी उतना ही है. यहाँ तो दिख रहा है ज़्यादा, इसका मतलब ये θ1 बढ़ गया, ऐसा नहीं है. ये भी θ1 है, ये भी θ1 है, ये भी θ1. ये θ1 को आप यहाँ से हटा देंगे तो बचा कौन है? ये वाली पार्ट है. सो दिस इज नथिंग बट योर एंगल θ. दिस इज नथिंग बट योर एंगल θ. दैट मीन्स θ2 माइनस θ1 यू आर गेटिंग द एंगल. So this is how you will compute the angle as far as bearing concept is used. So in detail we will discuss later. That means if you want to know the angle, one angle आपको चाहिए, so then means you should know two bearings. So angle P के लिए आपको PQ bearing चाहिए और PR bearing चाहिए, and the difference between two bearings you will always get the angle. The difference between two bearings you will always get the bearing. So now you know what is meridian and what is bearing and what are different types of meridian, what are different types of bearings, and how you will compute an angle from the bearing. How you will compute an angle from the bearing. Then in the beginning we said that there are four technical terms. So once you know the bearing, अब समझ लीजिए किसी से आपने पूछा कि आपका हाइट कितनी है, इनमें से मेरा हाइट 1.5 मीटर्स है, इनमें से मेरा हाइट 5 फीट को हूँ मैं. So he is using different systems. He is using different systems. That means he may say 1.5 meter or he may say or she may say 5 feet. So that means the same answer but it is shown in different systems. Similarly, the bearing also can be shown in two systems. In the earlier slide we have discussed what are these two systems. One is known as WCB. One is known as WCB. And the second one is known as QB. One is known as WCB. What is WCB? WCB means whole, WHOLE, whole circle bearing, B for bearing, whole circle bearing system. And Q for quadrantal bearing system. Q for quadrantal bearing system. Quadrantal bearing system. WCB, whole circle bearing, QB, quadrantal bearing system. First we will see what is this system. होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में क्या होता है? होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में क्या होता है? यहाँ हम हमेशा ये एक डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड द नेम ऑफ द डायरेक्शन इज नॉर्थ. नेम ऑफ द डायरेक्शन इज नॉर्थ. वी विल गिव इंपॉर्टेंस टू ओनली वन डायरेक्शन एंड दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन. एंड वेयर एज इन क्वाड्रेंटल सिस्टम we will give importance to all four directions, and basically we give more importance to north direction and south direction. We will give importance to north direction and south direction. And then again in whole circle bearing system में bearing हमेशा clockwise में हम लोग mention करते हैं. bearing हमेशा कौन सी direction होगा? clockwise घूमते रहेंगे. And whereas in this case it may be clockwise or it may be anti-clockwise. तो बेरिंग आपका क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. बेरिंग का वैल्यू जो होती है यहाँ हमेशा 0 से लेके 360 बीच में होगा. बेरिंग कितना होगा? 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में होगा. वेयरएज इन दिस केस द बेरिंग विल बी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लिखते हैं कि आप -10 डिग्री बेरिंग है होल सर्कल में, आपको हम क्वाड्रेंटल बेरिंग में कन्वर्ट कर लीजिए. तो ये पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू राइट बेरिंग इज नेवर नेगेटिव. बेरिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. बेरिंग इज नेवर नेगेटिव. बेरिंग कभी नेगेटिव नहीं होगा. ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है. यहाँ नॉर्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं, वहाँ नॉर्थ एंड साउथ को इंपॉर्टेंस देते हैं. यहाँ एंड बेरिंग हमेशा क्लॉकवाइज है, वहाँ क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है. यहाँ 0 से 360 डिग्री में उनकी वैल्यू होगा, 0 से 90 डिग्री में वैल्यू होगा.
कभी कभी इसमें सवाल ये भी आता है, एक बेरिंग होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में दिया है और आपसे ये पूछा जाता है यू कन्वर्ट दिस होल सर्कल बेरिंग सिस्टम इनटू reduced bearing system or quadrantal bearing system. Quadrantal bearing system is also known as reduced bearing system, capital or capital B, तब भी सेम है. You can call it as quadrantal or you can also call it as reduced bearing system. Now we will see what is the basic things. So let us say this is a meridian. When I use the word meridian, now you are getting what is this meridian. By default it is magnetic north and magnetic south. इफ इट इज नॉर्थ एंड साउथ तो सेंटर में आप प्लस साइन बना दीजिए और कुछ नहीं है. यू मेक ए प्लस साइन. सो दिस इज योर ईस्ट आपकी राइट साइड में, दिस विल बी योर वेस्ट. सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दिस इज द थिंग. अब फॉर एग्जाम्पल एक लाइन आपकी है, उस लाइन एक पॉइंट आपने लिया, सेंट्रल पॉइंट पी है, मेरिडियन है. जब आपको पता है ये नॉर्थ या साउथ है तो इमेजिन आपने कर दिया ईस्ट वेस्ट ये होगा, तो नॉर्थ साउथ लाइन आपने मेरिडियन बना दिया एंड दिस इज योर पॉइंट पी. लेट अस से आपके पास फील्ड में एक लाइन पी क्यू है, वो ऐसी लाइन है पी क्यू एंड अनदर लाइन यू आर हैविंग पी. लेट अस से यहाँ पर एक लाइन है, लेट अस से इसकी नाम है एक्स, पी एक्स. And another you are having a line, let us say it is like this is PY and this is your PZ. Now you see, अब P पॉइंट तो आपका है और नॉर्थ से लेके आपने ये शो कर रहा है, नॉर्थ से लेके ये आप शो कर रहे हैं. सो दिस इज बेरिंग ऑफ लाइन PQ, दिस इज बेरिंग ऑफ लाइन PQ. अब मैं नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू करता हूँ और यहाँ तक मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो ये वैल्यू क्या होगा, बेरिंग ऑफ लाइन पी एक्स, बेरिंग ऑफ लाइन पी एक्स. दैट मीन्स आई हैव स्टार्टेड एट नॉर्थ एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स दिस, दिस इज माई बेरिंग ऑफ पी एक्स. नाउ इफ आई यूज फ्रॉम नॉर्थ एंड यू आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज माई बेरिंग ऑफ पी वाई. And if I start from here and if I move in this direction and finally if I reach this point, this is my bearing of line PZ. तो यहाँ क्या हो रहा है, you are always starting from north and moving in which direction, clockwise. ये vertical angle नहीं है, you are moving in clockwise direction. So that means let us say this is theta 1 and this is theta 2 and this is theta 3 and sorry, so blue, this is theta 3 and फाइनली दिस इज योर थीटा 4. सो इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, नॉर्थ से आप शुरू कर रहे हैं तो इसलिए 0 डिग्री हैं, यहाँ आप 90 डिग्री गया तो ईस्ट पे आप 90 डिग्री पे हैं और ये यहाँ आप आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली 180 डिग्री है और 90 जुड़ जाएगा तो ये कितनी होगा 270 डिग्री है और 90 डिग्री आप ऐड करेंगे तो आप इसे 360 भी कह सकते हैं. तो इसका मतलब जो लाइन आपने लिया पी क्यू लाइन, वो नॉर्थ के साथ या मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितने एंगल बना रहे हैं, थीटा 1 बना रहे हैं. इसलिए योर थीटा 1 विल बी बेरिंग ऑफ लाइन पी क्यू, बेरिंग ऑफ लाइन पी क्यू एंड थीटा 2 जो है नॉर्थ के साथ पी एक्स लाइन की बेरिंग है, इसलिए थीटा 2 क्या है, बेरिंग किसकी है, पी एक्स की. एंड थीटा 3 क्या है, इट इज़ नथिंग बट बेरिंग किसकी है, पी वाई की है. एंड व्हाट इज थीटा 4, दैट इज बेरिंग ऑफ द लाइन है पी जेड है. इसमें आप देखेंगे सो थीटा 1 ऐसे आपने एज्यूम कर दिया, हो सकता है इट इज़ समथिंग अराउंड 40 डिग्री हो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है. और थीटा 2 जो है आपका जरूर 90 से ज़्यादा 180 से कम है, लेकिन ये 180 के नज़दीक है. फॉर एग्जाम्पल यू मे एज्यूम दिस एज 150 डिग्री. एंड थीटा 3 ये 180 से ज़्यादा 270 से कम है, आप ऐसे ही डाल दिया 230 फॉर एग्जाम्पल. एंड थीटा 4 ये क्या बन रहा है, 90, 180, 270 एंड ये 360 है, तो ये लगभग कुछ आपने डाल दिया 310 डिग्री. दैट मीन्स these bearings are known as whole circle bearings
and the values are 40, 150, 230, 330 like this. That means the values are always in clockwise direction and they are varying always between 0 to 360. Now the same thing, ये सेम बेयरिंग्स जो हैं आपने ये 40, 50, 230, 310 लिखा है, कभी आपके एग्जाम पूछेंगे भाई आप इनको कन्वर्ट करके बता दीजिए क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कैसे है. सो दैट मीन्स कभी आपको सिग्निफिकेंस नॉर्थ को ही नहीं है, क्वाड्रेंट्स को भी आपको सिग्निफिकेंस देना पड़ते हैं. सो देन दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल बेयरिंग. इन द सेम वी ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ यू विल डू दिस वर्क. See, quadrant means there are 4 quadrants, but each quadrant has its own name. This quadrant is known as north. This quadrant is known as northeast quadrant because it is between north direction and east direction. It should not be called as east north because the basic thing is important should be given north direction and south direction since they are the two ends of a magnetic needle. So northeast, it is known as northeast, and this is known as northwest. This is known as northwest. This is known as northeast and this is known as northwest. And what is this? This is part is known as east south. Galat hai. It should be known as southeast and it should be known as southwest. It should be known as southwest. So कोई भी लाइन होगा तो वो लाइन इन 4 क्वाड्रेंट में ही पड़ेगी. पूरी एरिया पे आपने नॉर्थ साउथ लाइन यूज़ करते हुए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट आपने डिवाइड कर दिया. कोई भी लाइन जमीन में होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे, इट शुड फॉल इन ऑल दिस 4 क्वाड्रेंट्स ओनली. सो दैट मीन्स हियर वेदर इट इज़ ए नॉर्थ ईस्ट होगा या नहीं तो नॉर्थ वेस्ट होगा या नहीं तो साउथ ईस्ट होगा या नहीं तो साउथ वेस्ट होगा. देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स. नाउ वी विल सी व्हाट इज दिस थीटा 1. दिस थीटा 1 आपने जो कह रहे हैं व्हेन यू से इट इज थीटा 1 दैट इज होल सर्किल बेयरिंग. व्हेन यू कॉल इंस्टेड ऑफ थीटा 1 इफ यू कॉल इट एज नॉर्थ से you are moving towards east through an angle theta 1. So north से theta 1 east is quadrantal bearing and north से आपका तो ये PZ है. दैट मीन्स आप नॉर्थ से कहाँ जा रहे हैं? इस साइड जा रहे हैं. नॉर्थ से इस साइड आप जा रहे हैं. सो नॉर्थ से ये जो पार्ट आपने जा रहा है वो पार्ट किस तरफ जा रहा है? आपने वेस्ट साइड जा रहा है. सो देन दैट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट. सो यहाँ थीटा 1 आपको होल सर्किल बेयरिंग मैंने एग्जांपल लिया था 40 डिग्री है तो इसमें भी नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट है. बट व्हेन यू कम ओवर हियर तो आप ये नहीं लिख सकता है कि नॉर्थ 34 थीटा 4 नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट, ये नहीं लिख सकता. तो आपको ये लिखना है नॉर्थ से ये कितना जा रहा है. दैट मीन्स नॉर्थ ये ऐसा ही कहा ये वाली है. अब सिमिलरली द थर्ड वन जो साउथ से आप आ रहे हैं ये वाली जो है दैट मीन्स PX का जो बेयरिंग है ये कैसे आप लिखेंगे PX वाली बेयरिंग. तो साउथ से इस साइड जा रहा है तो ये समझ लीजिए जितने भी हैं तो इट शुड बी रिटन एज साउथ से कितनी जा रहे हैं आप वो वैल्यू टूवर्ड्स ईस्ट. सिमिलरली ये जो भी लाइन होता है ये कैसे लिखेंगे? साउथ से ये कितना जा रहा है. अब तो पूरा आपको पता है लेकिन आपको ये चीज़ चाहिए वो कितनी है. तो लेट अस से दिस इज दिस मच. सो साउथ से कितनी जा रहा है और इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग? वेस्ट डायरेक्शन. सो वाइल कन्वर्टिंग ये केयर शुड बी टेकन कि नॉर्थ डायरेक्शन से कितना इस पे जा रहा है और साउथ से कितने जा रहे हैं और साउथ से इस साइड कितनी जा रहे हैं वो वैल्यूज आपको डालनी है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू कन्वर्ट द bearings. Accordingly you have to convert the bearings. So for example the first one आप लोग कह रहे था 40 डिग्री. फर्स्ट वन वी आर कॉलिंग इट एज लेट अस से 40 डिग्री. तो फर्स्ट का वैल्यू क्या होगा? नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट. और सेकंड का वैल्यू ये तो 40 डिग्री हमने एज्यूम किया. ये फॉर एग्जांपल हम लोग थीटा 2 कितना कहा? थीटा 2 फॉर एग्जांपल 150 कहा. अभी मैं भूल गया कितना कहा था. 150 डिग्री फॉर एग्जांपल थीटा 2 हम लोग लिया. सो व्हाट डज दैट मीन? ये जो पूरा जो वैल्यू है 150 है तो ये बचा कितना है? ये कितना होगा? 1. ये क्योंकि ये पूरा हाफ सर्किल है तो इसका मतलब 180 में से 150 को आप घटाएंगे तो जो वैल्यू आ रहे हैं दैट इज योर 30 डिग्री. दैट मीन्स इट कैन बी दिस 150 डिग्री कन्वर्ट आप कर रहे हैं तो इट शुड बी रिटन एज साउथ से 30 डिग्री. साउथ से 30 डिग्री आप किस तरफ जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं. साउथ से 30 डिग्री ईस्ट जा रहे हैं.
सिमिलरली आपने पी वाई बेरिंग थीटा 3, फॉर एग्जांपल आपने लिया है ये 180 है, तो फॉर एग्जांपल आपने लिया 220 डिग्रीज हैं, तो आप कैसे इसको लेंगे? 90 90 180 है, 220 दिया था, तो आपने साउथ से ये कितना जा रहा है, ये टोटल ये 220 है, और तो ये बचा कितना है? 180 में से बचा ये क्या है? ये 40 डिग्री है। तो 220 डिग्री या इसका मतलब ये क्या है? ये 220 में से 180 डिग्री घटाएंगे, तो टोटल 220 है, उसमें से 180 आप निकाल देंगे, ये पार्ट निकलेगा, एंड दैट इज नथिंग बट साउथ से अब कितने जा रहे हैं? 40 डिग्री साउथ से, अब 40 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट आप जा रहे हैं। दैट मीन्स 220 डिग्री किसी ने दिया होल सर्कल बेरिंग है, हाउ यू विल कन्वर्ट इट? साउथ 40 डिग्री वेस्ट, एंड फाइनली नॉर्थ वेस्ट का फॉर एग्जांपल जो थीटा 4 आपको दिया है फॉर एग्जांपल 330, इसका मतलब ये टोटल 330 है, तो ये बचा पार्ट कितनी होगी? ये होगा आपका 360 में से 330 को आप डिडक्ट करेंगे, तो यू आर गेटिंग 30 डिग्री। सो दिस वैल्यू इज 30 डिग्री, तो यू शुड राइट इट एज नॉर्थ से किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं? वेस्ट साइड। कितनी वैल्यू है? 30 डिग्री। दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट द बेरिंग फ्रॉम होल सर्कल सिस्टम इनटू रिड्यूस्ड सिस्टम और क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम। एग्जाम्स में भी 2 या 4 मार्क के लिए आता है, और कभी कभी 10 मार्क के लिए भी आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर ये पूछा जाता है कि हाउ यू विल कन्वर्ट फ्रॉम दिस टू दिस सिस्टम। यू प्रैक्टिस दिस वन, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वन। सो दिस इज हाउ you will convert one system to another system. So this is whole circle bearing system, quadrantal bearing system, and how you will convert from whole circle bearing system to quadrantal bearing system. So again I am repeating, whole circle bearing system, 3 points are important. It always starts with north, it is always clockwise direction, value varies between 0 to 360 degree. Whereas in reduced bearing system or quadrantal bearing system, the bearing may be clockwise or anti-clockwise, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में clockwise है, यहाँ तो anti-clockwise है, यहाँ तो anti-clockwise है, यहाँ तो clockwise है, तो इसीलिए it may be clockwise और anti-clockwise, but importance किसकी है? 4 क्वाड्रेंट्स की देनी है। क्वाड्रेंट की स्टार्टिंग लेटर हमेशा N होना चाहिए, नहीं तो S होना चाहिए, मीन्स NE NW या SE SW सही है। आप उल्टा कहेंगे EN और ES और WS या WN, वो गलत है। एंड देन फाइनली द वैल्यू, क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना होगा? 0 से लेकर 90 डिग्री होता है, तो इट इज ऑलवेज 0 to 90 डिग्री, एंड बेरिंग इज नेवर नेगेटिव, बेरिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। So we discussed about meridian, we discussed about bearing, and we discussed about systems. Now we will see the most important thing, that is FB and BB. FB and BB. So what is FB and what is BB? So after knowing this conversion, should know what is FB and what is BB. So FB means forward bearing or forward bearing, and BB means backward bearing. For example, you take a point in the field, let us say this is P, and another point, let us say this is your Q. एक पॉइंट P आपने फील्ड में लिया, Q पॉइंट लिया, आपको क्या करनी है? अभी सिंपली P पॉइंट पे आपको मेरिडियन बनानी है, या नहीं तो यू आर इन रियलिटी में आप क्या कर रहे हैं? यू आर गोइंग टू पुट द इंस्ट्रूमेंट, कंपास आप रखेंगे, कंपास का नीडल यहाँ हैंग हो रहा है, दैट मीन्स व्हेन आई से दिस वन मीन्स इट इज कंपास। सो दिस इज योर कंपास या मैग्नेटिक नीडल है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन। इवन इफ यू शो लाइक दिस, अंडरस्टूड है, ये नॉर्थ है तो ऑटोमेटिकली ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। अब P से Q की तरफ आप देख रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट इज दिस? थीटा 1. What is theta 1? What is theta 1? It is nothing but bearing of line PQ. So what is theta 1? It is bearing of line PQ. Now it is P point and it is Q point, it is my meridian. P से Q की तरफ मैं देख रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम फ्रॉम P to Q, आई एम मूविंग इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दैट मीन्स P से Q आप जा रहे हैं, यू आर मूविंग इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन, यू आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो P to Q are moving in forward direction, that's why the bearing theta 1 is known as
forward bearing, or it is also known as forebearing. It is technically known as FB, means forward bearing or forebearing. So simply it is nothing but bearings. It indicates the direction with reference to the starting point. So P की reference में Q की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं. That's why the bearing is known as forward bearing, of whom it is the line PQ. PQ की जगह पे XY लिखेंगे. That is forward bearing of line XY. Now यहाँ आपका मेरिडियन है तो Q में भी मेरिडियन होगा आपका. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग मैग्नेटिक नीडल, यहाँ आपने रखा या मैग्नेटिक कंपास आपने यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी आपका मेरिडियन बनेगी. ये नॉर्थ साउथ. मेरी एक सवाल है, ये दोनों मेरिडियन कैसे होंगे? ये दोनों मेरिडियन कैसे होंगे? दे आर ऑलवेज पैरेलल. क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इफ़ इट इज़ मेरा नॉर्थ साउथ लाइन है तो मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो यहाँ भी मेरा नॉर्थ साउथ लाइन यही है. मैं जाके यहाँ भी रखता हूँ तो यहाँ भी है. इस पूरा एरिया में नॉर्थ साउथ लाइन या मैग्नेटिक मेरिडियन इज पैरेलल टू ईच अदर ओनली. जहाँ भी आपने रखा है यहाँ पर है, मैं यही भी आ जाता हूँ, यहाँ मेरा मैग्नेट रखता हूँ तो ये भी यही होगा. मैग्नेट ऑलवेज शोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सो मैग्नेटिक मेरिडियंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. दैट मीन्स दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर. कोऑर्डिनेट के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये ऐसी लाइन बनाया तो ये अंडरस्टूड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. सिमिलरली यहाँ भी मैंने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्राइंग द लाइन. सो दिस इज योर ईस्ट लाइन एंड दिस इज योर वेस्ट लाइन. नाउ द थिंग इज P से Q तो हो गया. अब उल्टा Q से P की तरफ आप देखेंगे, Q से P की तरफ देखेंगे तब भी आपका एक बेयरिंग बनेगा. Q से आपने क्या करेंगे? ये जो लाइन मैं आगे करता हूं, दिस लाइन को आई विल एक्सटेंड इट. ठीक है, ये Q है तो आगे भी यही है. सो दिस पार्ट जो है ये क्या है? ये पार्ट कैन एनीवन से? सो व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ लाइन QP? तो क्या होगा? ये यहां से लेके यहां से पूरा ये होगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू किया आपने और घुमाते घुमाते उस लाइन को आपने टच किया. सो दैट इज द θ2. समझ में आ रहा है? व्हाट इज θ2? दिस इज नथिंग बट बेयरिंग है. लेकिन किसकी बेयरिंग है? आपने यहां से θ1 PQ की बेयरिंग है, θ2 क्या होगा? QP की बेयरिंग है. QP लाइन है तो θ2 होगा. लेकिन हमें काम P की रेफरेंस से कहनी है तो P से Q की तरफ जा रहा है तो आप आगे जा रहे हैं और Q से P आप देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उल्टा देख रहे हैं, वापस आप आ रहे हैं. दैट मीन्स दैट इज नोन एज बैकवर्ड डायरेक्शन. दैट्स वाई दिस θ2 को क्या कहते हैं? बैक बेयरिंग और बैकवर्ड बेयरिंग किसकी है? ऑफ लाइन PQ. दिस you see, try to listen carefully. This θ2 is nothing but bearing. किसकी bearing है? ये QP लाइन की bearing है. बट इनकी रेफरेंस में आप इनको कहनी है, इसलिए θ1 is known as forward bearing of the line PQ and θ2 is known as backward bearing of line PQ. क्योंकि P से Q आप आगे बढ़ रहे हैं, Q से P आप पीछे आ रहे हैं. या θ2 को आप चाहे तो और भी दूसरी नाम से पुकार सकते हैं. हाँ, बता दीजिए θ2 को क्या कह सकते हैं? It is also known as forward bearing of line QP. It is also known as forward bearing of line QP. QP का ये forward bearing भी कह सकते हैं या इनको backward bearing of line PQ कह सकते हैं. क्योंकि जिस पॉइंट से हम नाम यूज करना चाहता है तो you should always use forward. When I use the word PQ, that is θ1 is forward bearing of PQ. When I want to use the starting point as Q, तो QP, that means θ2 is forward bearing of QP. But मुझे टेक्निकली फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच में फर्क समझ में आना चाहिए. तो व्हेन यू आर हैविंग ए लाइन मीन्स ए लाइन का नाम क्या है? PQ है. उस लाइन PQ के लिए फॉरवर्ड बेयरिंग कौन है? बैकवर्ड बेयरिंग कौन है? सो फॉर द लाइन PQ फॉरवर्ड बेयरिंग इज θ1, फॉर द लाइन PQ बैकवर्ड बेयरिंग इज θ2. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन θ2 एंड θ1?
न्यूमेरिकली स्पीकिंग इस सिंबल डालते थीटा 2 और थीटा 1 के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। कभी थीटा 1 ज़्यादा हो सकता है, कभी थीटा 2 ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच दे आर पोजिशन। नाउ यू सी, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों सेम है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल टू ईच अदर, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये थीटा 1 ही है 1 बाई। सो दैट मीन्स टोटल थीटा 2 है और ये पार्ट थीटा 1 है, तो बचा जो पार्ट है, जो पार्ट बची है ये है, ये कितना है, जो ब्लू कलर से हम लोग लिखा था वो कितनी पार्ट है ये, दिस इज 180 डिग्री, बिकॉज सेमी सर्कल है, फुल सर्कल बनेगा तो 360, सेमी सर्कल है। दैट मीन्स हमेशा आपको ये चेक करनी है भाई आपका काम सही है गलत है, तो एक लाइन लिया आपने, पी से क्यू की तरफ बेरिंग निकाला और क्यू से पी का बेरिंग निकाला, तो दोनों के बीच में हमेशा हमेशा डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बेरिंग एंड बैकवर्ड बेरिंग इज ऑलवेज 180 डिग्री थ्योरेटिकली। अच्छे बच्चे जो मैथ्स में सही करता है तो 100 में 100 ये एवॉल्व कर सकते हैं, आइडियल स्टूडेंट जो है जिसने 100% स्कोर किया, लेकिन ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, कभी फिजिबल है, सबके लिए फिजिबल नहीं है। सिमिलरली प्रैक्टिकली मीन्स थ्योरेटिकली स्पीकिंग द फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 2-2 मार्क के लिए पूछा जाता है, टेक्निकल सवाल है, बट ये 180 डिग्री नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ने मिस्टर एक्स ने गया काम किया और थीटा 1 का एक पी पॉइंट यहाँ था, क्यू पॉइंट यहाँ पर है, पी क्यू के बीच में उसने रीडिंग निकाला और ये जो रीडिंग इनको मिला है 30 डिग्री एंड क्यू पी का रीडिंग उनको मिला 210 डिग्री, ठीक है। और गया ये पी क्यू यहाँ से हटा दिया, इसी एरिया में मैंने यहाँ पर चले गया हूँ खिड़की के पास में, यहाँ पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट रखा, तो उनका मैंने बेरिंग ऐसा ही निकाला था और एक सेट ऑफ रीडिंग्स आया, कभी पी का रीडिंग मुझे आ गया 41 डिग्री और क्यू का रीडिंग आ गया मुझे 220 डिग्री। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं ये। अब ये आपको एज एन इंजीनियर आपके पास एक डेटा आया है, बोला है भाई 2 पॉइंट था ज़मीन में और उससे 30 डिग्री और 210 डिग्री आया था वर्क में, और दूसरा जो है दूसरा साइड का डेटा था ये आया। तो बीइंग एन इंजीनियर आप क्या कमेंट करेंगे, आप ये कहेंगे अच्छा दिस इज 30 डिग्री, वेरी गुड, दिस इज फॉरवर्ड बेरिंग एंड दिस इज बैकवर्ड बेरिंग। सो आप ये कमेंट देंगे ओके दिस इज हैविंग नो एरर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 30 एंड 210 इज 180 डिग्री, ओके इट्स गुड। नाउ 220 एंड 41 डिग्री आप कहेंगे यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है, दैट मीन्स फोर बेरिंग और बैकवर्ड बेरिंग के बीच में डिफरेंस है। देन यू विल कॉल द टीम, अब टीम आया है उनसे पूछेंगे सर आपको जो इंस्ट्रूमेंट मिला वो सही है या गलत है, वो कहेंगे नहीं, इफ़ दे से इंस्ट्रूमेंट सर थोड़ा ठीक नहीं है, दैट मीन्स ये एरर जो है इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया होगा। इफ़ दे से नो सर जो टीम ये यूज़ किया था वही इंस्ट्रूमेंट उसने यूज़ किया था, अच्छा इंस्ट्रूमेंट तो सही है, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है। सोर्सेस ऑफ एरर कितनी है, 3 है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया। वन सोर्स इज इंस्ट्रूमेंट से एरर नहीं है, तो आपने बोला ठीक है सर जिस समय आपने काम कर रहे था वहाँ कोई टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हो, जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो या ना तो हवा बहुत ज़्यादा हो, ताकि नेचुरल कंडीशंस आपकी प्रॉब्लम हो। नहीं सर जिस जगह पे किया था उसी एरिया में वो पॉइंट्स थे, जिस स्थिति में कर रहे थे उसी स्थिति में हम लोग किया, तो कोई नेचुरल एरर का गुंजाइश ही नहीं है सर। दैट मीन्स दूसरा सोर्स जो है नेचुरल एरर्स वो भी खत्म। फिर वो कि सर आपका जो कैलकुलेशन है रीडिंग पढ़ते वक्त पर्सनल एरर से प्रॉब्लम हुआ, नहीं सर जब हम रीडिंग लिया था सेम पार्टी को हम लोग वहाँ भी बुलाया फिर चेक भी करवाया था सर, रीडिंग्स भी सेम है, दैट मीन्स आपका पर्सनल एरर्स भी नहीं है। सो 3 सोर्सेस नॉर्मली जो होता है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, मैनुअल एरर्स या पर्सनल एरर्स हो गया और नेचुरल एरर्स, ये तीनों सही है, फिर भी आपका 180 डिग्री नहीं आ रहा है, देन दैट कंडीशन लीड्स टू certain thinking and that is mainly due to the presence of local attraction, that is known as local attraction। ये जो गलती जो हुआ है ये किस लिए हुआ है कि लोकल अट्रैक्शन की वजह से। तो लोकल अट्रैक्शन होता क्या है हम ऐसे आम भाषा में समझाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल क्लास हो रहा है, 70 बच्चे इसमें 70 स्टूडेंट्स है, बैठे सब है, हाँ लेकिन अब फ़ोन किसी ने साइलेंट मोड में रखा और लेक्चर तो वही हो रहा है, लड़का उसी तरफ से सभी हैं, लेकिन उनको सडनली कोई मैसेज आया, उसी समय उसने कुछ देखा फिर ऑफ किया, फिर वो लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो इनकी आउटकम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एरर आ सकते हैं। इफ़ यू टेस्ट दैट पर्सन ही मे हैव सम एरर, बिकॉज वो एरर उसमें कैलिबर है सब हैं,
लेकिन उसमें एरर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लोकल अट्रैक्शन। जो भी लोकल डिस्टर्बेंस उनकी हुआ था वही था लोकल अट्रैक्शन की वजह। हाँ, सिमिलरली यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसमें क्या लोकल अट्रैक्शन हो सकता है जिसमें इंसान को कोई मशीन ने ये किया? तो सिमिलरली इस पूरी वर्क में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? मैग्नेटिक नीडल है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? मैग्नेटिक नीडल है, जिसकी वजह से आपका मेरिडियन बन रहा है। जब आपका मेरिडियन एक बार बन गया तो आप तो रीडिंग पढ़ रहे हैं। जैसे प्रोट्रैक्टर में क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन को आपने रखा, रीडिंग पढ़ रहे था, तो इसमें भी यही है, आपका रेफरेंस लाइन मेरिडियन से बन गई, एक प्रोट्रैक्टर टाइप का कुछ रिंग होता है, इंस्ट्रूमेंट दैट विल सी लेटर, उससे आप रीडिंग पढ़ रहे हैं। सो दैट मीन्स ये जो मेरिडियन में कुछ गड़बड़ है। तो नीडल तो सही था, फिर भी गड़बड़ क्यों है इसका बताते हैं। इट इज़ ए मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल हमेशा सब्जेक्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो दिखाती है, दैट डिपेंड्स अपॉन, ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल इन विच या टाइप ऑफ सराउंडिंग्स इन विच वी आर वर्किंग। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रीडिंग देख रहा हूँ और मेरे चश्मा पहना हूँ मैंने, इसमें मेटल हो सकती है। जब मैंने इन्हें देख रहा हूँ, हो सकता है कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन थोड़ा सा हिल गया हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन माई स्पेक्टिकल्स। या जहाँ काम हो रहा है तो इसमें कई इलेक्ट्रिक वायर ऊपर से जा रहे हो, या तो जिस पे आपने इंस्ट्रूमेंट रखा स्टैंड के ऊपर, जो सॉइल है उसमें फर्राइट मटेरियल ज़्यादा हो, या कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ ज़्यादा चल रहा हो, आयरन पड़ा हो, अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क्स हो। तो इसका मतलब जब जब हम रीडिंग्स लेते हैं, जहाँ भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, 180 डिग्री नहीं आता है, देन वी नॉर्मली एज्यूम दैट इंस्ट्रूमेंट सही है, हम सही है और नेचुरली नॉर्मल कंडीशंस हैं, तब भी एरर आ रहा है। सो दैट इज मेनली ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन। दैट मीन्स देयर आर सम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन द फील्ड विच आर unknowingly deflecting this magnetic meridian, unknowingly deflecting this magnetic meridian, and this condition is known as local attraction. ये बहुत बार 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए, 20 मार्क के लिए पूछा जाता है। What is local attraction? That means जो मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, the condition in which the magnetic bar or magnetic needle is unable to show its magnetic north and magnetic south and deflecting from that position is technically known as local attraction. Why it occurs? What are the causes of local attraction? That is presence of magnetic material, simple of ferrite material, construction work, metals, ये सब चीज़ लिखेंगे causes में. How you will detect it? The next is you have to write detection. So that means when you say local attraction, तो what is local attraction आपको पता होना चाहिए. Why it occurs ये भी आपको लिखनी है. What is local attraction, why it occurs, then how you will detect it. भाई आपको बोल दिया कि भाई ये तो है, लेकिन उसमें है या नहीं, कैसे आप डिटेक्ट करेंगे. तो सिंपली फर्स्ट यू हैव टू know the forebearing and back bearing of the given line, and if the difference between forebearing and back bearing is other than 180 degree, the difference is other than 180 degree, it may be 181, it may be 182, maybe 179, so other than 180 degree, then that means you are saying that हाँ इसमें इस लाइन में लोकल अट्रैक्शन है. so this is detection. 180 degree difference होना चाहिए. how you will eliminate it, तो है ये आपने पूरी प्रोजेक्ट कर दिया, पूरे ट्रैवर्स है, ABBCCDDEEFFGGHH, ये बहुत बड़ा ट्रैवर्स है. इसमें कई एक लाइन में ये प्रॉब्लम आ गया, बाकी में तो है ही नहीं. हो सकता है कभी 2 लाइन में आ गया हो, फॉर एग्जांपल एक ही लाइन में आया, लेकिन एक लाइन की वजह से पूरी ट्रैवर्स में भी इम्पैक्ट पड़ जाती है, पूरी प्रोजेक्ट में आपका इम्पैक्ट पड़ती है. इसीलिए यू शुड नो हाउ टू एलिमिनेट दिस लोकल अट्रैक्शन, दैट वी विल डू न्यूमेरिकली करता है तो ये समझ में आता है. तो ये कभी मैं 20 मार्क के लिए इसीलिए कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है ट्रैवर्सिंग में एक न्यूमेरिकल दे देंगे, उस न्यूमेरिकल के अंदर ये डाल देंगे, कोई एक लाइन का ऐसी वैल्यू दे देंगे, आप जब चेक करते पता चलता है कि दैट मीन्स यूर लाइन इज affected by local attraction. So these things you should know about local attraction. What is local attraction, why it occurs, how you will detect it, and how you will eliminate it. This is local attraction. Then there are 2 technical terms we are saying. One is called, in the first slide we said, one is magnetic dip and another is magnetic declination. And there is another term, lines. There are 2 lines, isogonic line and agonic line, that we will see in this video. सो व्हाट इज डिप. डिप मतलब क्या है, किसी को फर्स्ट टेस्ट में हुआ था 20 मार्क्स का, किसको मिला है कि 20 में 20, सेकेंड टेस्ट में उनको मिला था 18, आप क्या कहेंगे, अरे डिप हो गया. जंप भी क्या कह सकते हैं, बट टेक्निकली जंप में क्या होता है, नॉर्मली हाई जंप है, जंप करते अप कर रहे तो जंप है, बट डिप कर दिया यार, इनका तो पहले में 20 आया था, सेकेंड में 18 आ गया. हो सकता है कि पेपर टफ आ गया हो सकता है आपका कैलकुलेशन में गलती हो, तो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिप.
डिप मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू, 90 डिग्री 90 मार्क से 80 आ गया तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिप। सिमिलरली इफ इट इज़ ए मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, जब मैग्नेटिक नीडल लेके आप कहाँ भी रखता है कोई गारंटी नहीं है कि इट इज़ ऑलवेज एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, पैरेलल हो नहीं सकता है बिकॉज अर्थ इटसेल्फ इज ए बिग मैग्नेट, अर्थ इटसेल्फ इज ए बिग मैग्नेट। और ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि एक मैग्नेटिक नीडल को आप इक्वेटर पे लेके रखते हैं देन ओनली इट इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एंड इन ऑल अदर प्लेसेस बेस्ड ऑन इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन एंड पोजिशन इट नेवर रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, इट ऑलवेज डिप्स, इट ऑलवेज सम डिपिंग विल बी देयर। सो दैट टू कंट्रोल द डिप, समझ लीजिए मैग्नेटिक नीडल है, थोड़ा सा यहाँ डिप ऐसे हो गया तो इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त यहाँ कुछ वेट लगाते हैं ताकि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं भाई इस टाइप से डिप हो रहा है, उसने मैग्नेटिक नीडल को मैन्युफैक्चरर बना दिया और इसने हैंग कर रहे हैं, हल्का सा डिप यहाँ हो रहा है तो इंस्ट्रूमेंट में ये बना डालते वक्त यहाँ एक वेट को डालते हैं एंड इट इज़ मूवेबल वेट होता है, इन्हें कहते हैं राइडर, दैट विल शो लेटर। तो दैट मीन्स हमेशा मैग्नेट अदर दैन इक्वेटर हर जगह पे वो डिप करने की पूरी स्कोप है। सो that means if it is your magnetic needle, if it is your magnetic bar or magnetic needle and if it is its axis, तो यहाँ डिप कितनी है 0 डिग्री है, इट नॉर्मली हैपन्स एट द इक्वेटर। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, लेकिन जो आपका मैग्नेटिक बार है ये थोड़ा सा ये कर रहा है, दिस इज योर मैग्नेटिक बार, हल्का सा डिप कर रहा है। सो दिस एंगल इज नोन एज डिप, डिप कर दिया। सो दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डिप। हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड? बाय प्रोवाइडिंग ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस अलॉन्ग द मैग्नेटिक नीडल। जहाँ झुकाव इस तरफ है तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉर्मली एल्यूमिनियम राइडर होता है, यहाँ लगाते हैं, या तो ब्रास का भी रख सकते हैं। तो ये राइडर जो रखेंगे ताकि आप इसको बैलेंस करने के लिए, राइडर RIDER, ताकि इट कैन बी मूव्ड अलॉन्ग द मैग्नेटिक नीडल। सो मैग्नेटिक डिप का एंगल कौन से है, हॉरिजॉन्टल एंगल है या वर्टिकल एंगल है? इट इज ऑलवेज वर्टिकल एंगल, क्योंकि डिप ऐसी नहीं होती है, ऐसी नहीं है, डिप तो ऐसी होते हैं। डिप इज ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिप इज ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो दिस व्हाट इज डिप? द वर्टिकल एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द मैग्नेटिक नीडल इज नोन एज मैग्नेटिक डिप, इज नोन एज मैग्नेटिक डिप। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? वो बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके बारे में बहुत सारे पूछते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द मेरिडियन कॉन्सेप्ट। सो इट इज योर, लेट अस से समबडी इज सेइंग दिस इज योर ट्रू मेरिडियन, दैट मीन्स ये ट्रू नॉर्थ है आपका और ये आपका ट्रू साउथ है। तो इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे सर्वे ऑफ इंडिया वालों से पूछा भाई इस एरिया पे बिल्कुल ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ कौन से, उसने दे दिया ये ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है। आपने बोल दिया ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, ये मेरिडियन क्या हो गया आपका? ट्रू मेरिडियन। अब आपने अपनी मैग्नेटिक नीडल लेके आया और मैग्नेटिक नीडल को यहाँ रखा, तो ये क्या हुआ था? ऐसा ही था, ये क्या हुआ था? इट इज ऑल्सो लाइक दिस। ये आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ है एंड ये आपकी मैग्नेटिक साउथ है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। सो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक मैचिंग हो गया, दैट मीन्स ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक दूसरे से बिल्कुल मैच हो गया। सो इन दैट केस दे व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितनी है? 0 डिग्री, कोई डिक्लिनेशन ही नहीं है, कोई डिक्लिनेशन ही नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति बनी है दूसरी, ये आपकी ट्रू नॉर्थ है और ये आपकी पॉइंट था जिससे आपका ये ट्रू मेरिडियन है। अब आपने जब मैग्नेट रखा, व्हेन यू केप्ट द मैग्नेट एट हियर, तो लेट अस से द मैग्नेट इज बिहेविंग लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये आपकी मैग्नेटिक साउथ है। सो इफ़ ये सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने बोल दिया ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ ये है, आपने यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखा है, ये ऐसा नहीं है, ऐसे आ गया, दैट मीन्स
इन दोनों के बीच में एंगल क्रिएट हुआ। एंगल कौन सी है? हॉरिजॉन्टल एंगल है। डिप में वर्टिकल एंगल है, डिक्लिनेशन में हॉरिजॉन्टल। मीन्स नॉर्थ साउथ से थोड़ा डिविएट कर रहा है। ये किस तरफ डिविएट कर रहा है? इस तरफ डिविएट कर रहा है। दैट मीन्स सो ये आपका ईस्ट और वेस्ट होगा, ट्रू है ये। बट इस पे आप देखोगे तो ये इनकी ईस्ट वेस्ट क्या होगा? इनकी परपेंडिकुलर में होगा, सोचे जाएगा। दैट मीन्स आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये आपका ट्रू मेरिडियन है, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है एंड दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। So what is magnetic declination? The angle between true meridian and magnetic meridian is known as magnetic declination. It may be towards which direction? East. क्योंकि in this case ये declination किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है, या कभी कभी ये वेस्ट की तरफ भी हो सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्रू मेरिडियन है, ठीक है, दिस इज योर ट्रू मेरिडियन, और आपने मैग्नेट यहाँ रखा है और आपका जो मैग्नेट है ऐसे हो गया। तो ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है एंड दिस वन जो वेस्ट साइड आ रहा है, ये तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये भी आपकी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है बट इट इज इन वेस्ट डायरेक्शन। सो दैट मीन्स मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, either towards east or towards west. So what is magnetic declination? Magnetic declination is nothing but the horizontal angle between true meridian and magnetic meridian. Between true meridian and magnetic meridian is known as magnetic declination. लेकिन जब आपको किसी ने पूछा भाई इस एरिया में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है तो आप बता दीजिए कितनी है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो आपको मेरिडियन बोलने से नहीं होगा। दैट मीन्स आप उस पॉइंट की मैग्नेटिक, उस लाइन की मैग्नेटिक बेरिंग निकालेंगे और उसी लाइन की ट्रू बेरिंग निकालेंगे, और ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग आपको पता है, ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग ऑलवेज गिव्स डिक्लिनेशन। ट्रू बेरिंग में से मैग्नेटिक बेरिंग को माइनस करोगे यू विल गेट द डिक्लिनेशन। अब ट्रू बेरिंग मिला आपको 50 डिग्री, ट्रू बेरिंग मिला फॉर एग्जांपल आपको कितना मिला, ट्रू बेरिंग 50 डिग्री, और आपको मैग्नेटिक बेरिंग मिला है कितना है 49 डिग्री एक एरिया में, और दूसरा एरिया में आपको मिला है ट्रू बेरिंग 50 डिग्री और मैग्नेटिक बेरिंग 51 डिग्री। व्हाट डज दैट मीन? ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग कितनी है 1 डिग्री, ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग माइनस 1 डिग्री। Here the minus value is important. What does that indicates? True bearing minus magnetic bearing 1 degree, that means the declination is positive. That means it is east. And here the declination is negative, that means west. So when the declination is east, that means आपका magnetic needle आपको पता नहीं है true meridian से east की तरफ जा रहा है, that's why there you are getting declination positive value, and your magnetic needle is moving towards west when compared to true meridian, so then you are getting negative declination. So this is declination. So this is zero declination, and this is positive declination, and this is negative declination. Considering three aspects, you are having a formula to find out the relationship between TB, MB and D. When we say MD means D, that means ये एग्जाम में न्यूमेरिकल करने में काम आते हैं कि व्हाट इज ट्रू बेरिंग? ट्रू बेरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग को डिक्लिनेशन को ऐड करो या नहीं तो सब्ट्रैक्ट करो, प्लस और माइनस एम डी। यहाँ हम एम डी लिख रहे हैं, कुछ किताबों में डी भी लिखते हैं, डी और एम डी लिखो कोई फर्क नहीं है। सो दैट मीन्स व्हाट इज द फार्मूला फॉर ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस और माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो एग्जाम में कभी ट्रू बेरिंग दिया जाता है, मैग्नेटिक बेरिंग भी दिया जाता है, तो आप डिक्लिनेशन निकालोगे, या नहीं तो ट्रू बेरिंग दिया गया, डिक्लिनेशन दिया गया, मैग्नेटिक बेरिंग निकालेंगे, या नहीं तो मैग्नेटिक बेरिंग दिया जाता है तो दोनों, और डिक्लिनेशन दिया गया तो आप ट्रू बेरिंग निकालेंगे। सो व्हेन दे आर गिविंग द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये कहेंगे 1 डिग्री ईस्ट, देन यू विल से
प्लस साइन यूज़ करोगे, प्लस सिंबल कब यूज़ करोगे, जब ईस्ट डिक्लिनेशन देंगे तो प्लस है, माइनस सिंबल कब यूज़ करोगे, व्हेन द डिक्लिनेशन इज माइनस. सो दैट इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. दिस इज वन important one. And then finally in this video we will conclude with isogonic line and agonic line. With the help of isogonic line and agonic line we will see what is isogonic line and what is agonic line. ये दो मार्क के लिए पूछते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आगे भी ये काम आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय आइसो? ऑलरेडी आपने हाइड्रोलिक्स भी पढ़े हैं और इसमें फिजिक्स भी पढ़े हैं. आइसो नॉर्मली किसे इंडिकेट करते हैं? सेम वैल्यूज. आइसो हाइट सुना आपने, तो आइसो ऑलवेज इंडिकेट्स सेम वैल्यूज जहाँ भी होता है. तो कोई भी आइसो मार्क्स हम ऐसा एक नाम दे दिए. इसका मतलब क्या है, इस क्लास में सर्वेइंग में फर्स्ट टेस्ट में जिसको 20 में से 20 मिला, सबको खड़ा किया मैंने. यहाँ एक लड़का, वहाँ एक लड़का, यहाँ लड़की, वहाँ एक है, मतलब यहाँ 70 पॉइंट्स हैं, इसमें से 15 लोग हैं जिसको 20 में 20 मिला फॉर एग्जाम्पल. तो 20 को मैंने ज्वाइन कर दिया. मैं कह दूंगा इसका नाम एक मैंने दे दिया, ये आइसो मार्क. कौन से है? 20. अब मैं कहता हूँ कि 19 वाला खड़े हो जाइए, तो 19 मार्क वाले 12 लोग खड़ा हो गया. तो देन आई विल ज्वाइन ऑल दीज 19 मार्क्स. कहेंगे यार ये आइसो 19 है. और कोई कहेंगे सर 19.5 का हम लोग 7 लोग हैं, चलो 19.5 ये हो गया आइसो 19.5. सो वेन एवर ऐसे आइसो 19, तो इसका मतलब क्या है, इस क्लास में ऐसे 17 लोग हैं और उन्हें मैं आइसो 19 दे रहा हूँ जिसका मार्क्स जो है सेम है. दैट मीन्स व्हाट इज आइसो? आइसो का मीनिंग क्या होता है? ए लाइन ज्वाइनिंग इक्वल मार्क्स का. यहाँ तो इक्वल मार्क्स का, तो यहाँ क्या होता है? ए लाइन ज्वाइनिंग इक्वल डिक्लिनेशंस. तो इस एरिया में आपको बहुत सारे पॉइंट्स है, हर पॉइंट का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अलग हो सकता है हर पॉइंट पे. तो इसीलिए एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग और ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन इज नोन एज आइसोगोनिक लाइन. लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ equal declination is known as isogonic line. Line joining points of equal declination is known as isogonic line. और कुछ जगह में इतनी परफेक्ट है तो जिसमें मतलब हम लोग ये फॉर एग्जांपल कहते हैं क्लास में इतनी बढ़िया था, उसका 20 की 20 आ गया. फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कि फुल मार्क्स आपको मिल गए. तो 0 मार्क वाला भी मिल गया. तो यहाँ 0 का मीनिंग अलग है. यहाँ 0 डिक्लिनेशन मतलब क्या है? ये परफेक्ट है, बिल्कुल ट्रू मेडियन के साथ ये जुड़ गया. रियलिटी में 0 मार्क्स है तो वो गलत है. तो इसका मतलब जिस जगह पे आपने ये इस कमरे में यानी तो इस ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड में ऐसी 15 पॉइंट्स है जिसमें आपने देखा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 0 है. सो दैट मीन्स आप वो लाइन्स ज्वाइन करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एगोनिक लाइन. दैट इज नोन एज एगोनिक लाइन. तो आइसोगोनिक लाइन का मतलब ये होता है लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और इक्वल डिक्लिनेशन, एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ 0 डिक्लिनेशन इज नोन एज एगोनिक. इतना सफिशिएंट है, बट वी विल एक्सप्लेन द फिजिकल मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है और ग्राउंड में आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता चल गया था कि यहाँ पर जब आपने डिक्लिनेशन देखा था, यहाँ कोई मैग्नेट बिल्कुल 0 डिग्री पे थी, यहाँ भी कोई डिक्लिनेशन नहीं था. ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन जुड़ गए थे, सब इसमें बढ़िया आ रहे थे. यहाँ जब आपने देखा था, यहाँ जब आपने देखा है, इसमें क्या आ रहा था कि 30 मिनट के आ रहे हैं. यानी तो सब फॉर एग्जांपल 1 डिग्री डिक्लिनेशन आ रहा है, यहाँ भी 1 डिग्री आ रहा है, यहाँ भी 1 डिग्री आ रहा है, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री डिक्लाइन हो रहा है. तो मीन्स ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में 1 डिग्री यहाँ आ रहा था. जब आपने बगल में देखा था, ये जो है 1.5 डिग्री आ रहा है. 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. अब नेक्स्ट में आप लोग देखे थे यहाँ 2 डिग्री की, समझ में आ रहा है ना? 2 डिग्री मतलब इस पॉइंट पे अपने ट्रू मेरिडियन के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन 2 डिग्री डिविएट कर रहे हैं. यहाँ आपको आ रहे हैं 3 डिग्री फॉर एग्जांपल, और यहाँ मुझे मिल रहे हैं 4 डिग्री. मुझे इसमें कोई कहा कि भाई इस एरिया का आप बना दीजिए आइसोगोनिक चार्ट, आइसोगोनिक चार्ट बना दीजिए. तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं है, बस आई विल सिंपली से
इफ़ आई ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ये 1 2 3 बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इफ़ आई ज्वाइन दीज पॉइंट्स, तो मैं ये कह देता हूँ, ये मैंने कह दिया भाई ये 0 डिग्री की है, I call it as a 0 degree line. That means this is your agonic line. Very good. Agonic line आपको एक फॉर्म हुआ है. And if I join these lines, if I join these lines 1 degree, so what is this? This is isogonic line of 1 degree. This 1 degree indicates declination, magnetic declination means an imaginary line joining points of equal declination. ये आपके हो गया 1 डिग्री की आइसोगोनिक लाइन. ये आप ज्वाइन करेंगे, ये क्या हो गया आपका, सॉरी ये 1.5 डिग्री की हो गया. सिमिलरली इफ यू ज्वाइन दिस वन, सो दिस विल बी योर 2 डिग्री, एंड इफ यू ज्वाइन दिस वन, सो दिस विल बी योर 3 डिग्री isogonic line. And finally if you join with this one, so it will be your 4 degree का isogonic line. So this is how you visualize. तो ये given area में बहुत सारे points आपके पास है, and each and every point का true median, magnetic median आपको पता है, and if you know the declinations and you can prepare a isogonic chart. So this is the basic meaning and concept of isogonic line and agonic line. Isogonic line and agonic line. Now what you have studied in this is what is meridian, what are different meridians, what is bearing, what are different bearings, how you can compute the angle with the help of bearing, that also we discussed. Then what are the different systems of bearing, whole circle bearing and reduced bearing, and how you will convert from one system to another system. Then what is forebearing and what is bearing, what is the meaning, and what is local attraction, what are the causes, how you will detect them, how can you eliminate them. Then what is the meaning of dip and what is the meaning of declination, and then what is isogonic line and agonic line. These are the various concepts of compass surveying you study. Now majorly we left with the most important thing, that is called traversing. So that is called traversing, that in the first chart we have already discussed what are the things we are going to discuss as far as traverse is considered. So this one we will discuss in traversing. What is traversing meaning? Then we will see what are the different types of traversing. इसके बाद how you will perform this traverse in the field. फील्ड में आप traversing कैसे perform करेंगे. So field procedure you should know. Once you know get the data of the traverse. traverse का डाटा क्या होता है, लेंथ और एंगल्स. तो आपको ये पता होना चाहिए भाई हमें इनको कैसे प्लॉट करेंगे. एंड इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, जो प्लॉटिंग आप कर रहे हैं डेफिनेटली एरर होता ही होता है, क्योंकि आपका लेंथ प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो आपका रीडिंग्स की प्रॉब्लम है. तो प्लॉट करने से पहले आपको ये कैलकुलेशंस करना पड़ता है जो गलती आपसे किया है. तो जो लीनियर मेजरमेंट्स आपका गलती हुआ तो उसमें कोई आपको पता भी नहीं कि क्या एरर आपने किया, बट एंगुलर मेजरमेंट में आपका कोई लोकल अट्रैक्शन हो या कोई एरर हो तो आप रेक्टिफाई करते हुए प्लॉट करेंगे. प्लॉट करने के बाद आपको पता चलता है भाई मैंने ये क्लोज्ड ट्रैवर्स का किया, ABCD बना रहा हूँ मैंने जब ऑन ड्राइंग पेपर, तब फर्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ रहा, दैट मीन्स देयर इज सम एरर. दैट मीन्स यू शुड नो हाउ टू एडजस्ट दैट एरर. दैट इज ऑल्सो नोन एज एडजस्टमेंट. सो दैट मीन्स प्लॉटिंग में भी बहुत सारे मेथड्स हैं. आप देर आर सो मेनी मेथड्स बट प्रैक्टिकली 3 सिग्निफिकेंस है. आपने बेरिंग के हिसाब से प्लॉट कर सकते हैं बेरिंग यूज़ करते हुए, नहीं तो इंटीरियर एंगल्स यूज़ करके भी आप प्लॉट कर सकते हैं, या तो डिफ्लेक्शन एंगल यूज़ करते भी प्लॉट कर सकते हैं. और भी मेथड्स है बट दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, वही यूज़ होता है आगे भी. तो बेरिंग पे कैसे आपका प्लॉट होगा, या नहीं तो एंगल से आप कैसे प्लॉट करेंगे, एंगल मीन्स इंटीरियर एंगल, और डिफ्लेक्शन एंगल से कैसे प्लॉट करेंगे. देन कोई गलती आपसे हो गया है, जब प्लॉट करते हो तो आपको समझ में आ गया सब मेथड्स यूज़ करने के बाद भी जब आपके एरर आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं मिल रहे प्रॉपरली, दैट मीन्स यू शुड डू सम ग्राफिकल एडजस्टमेंट. ये भी एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए. और जब आपने काम करने के बाद जब फील्ड में या जो रीडिंग्स आपको मिला गया है, न्यूमेरिकल में यही होता है रीडिंग दिया जाता है, वो सही है या गलत है ये करने के लिए चेक होता है. द चेकिंग इज देयर फॉर बोथ ओपन ट्रैवर्स एंड checking is also there for both closed traverse. That we will discuss in next video. So traversing in detail we will discuss in the next one, and finally we will compare that traverse with the help of chain and traverse with the help of compass. And next we will also show
the prismatic compass and surveyor compass. With the instrument we will show what is the basic difference between this prismatic compass and surveyor compass. There are two systems. Here I am saying the prismatic compass is based on WCB system, that means whole circle bearing system, whereas surveyor compass is based on क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम. सो जो हम कह रहे थे कि होल सर्किल बेरिंग सिस्टम पहले आपने बताया था 0 to 360 डिग्री जो होता है, उस बेस पे जो इंस्ट्रूमेंट बनी है दैट इज प्रिज्मेटिक कंपास. नॉर्मली ये हम यूज़ करते हैं. और जो क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम से जो इंस्ट्रूमेंट बनी है एंड दैट इंस्ट्रूमेंट नेम इज सर्वेयर कंपास. कभी 2-2 मार्क के लिए पूछ लेते हैं व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन होल सर्किल बेरिंग सिस्टम, प्रिज्मेटिक कंपास. व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड बेस्ड ऑन क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम, देन यू हैव टू से सर्वेयर कंपास. थैंक यू.